Now what is liquid state? We know liquids are in liquids have definite volume, but they do not have definite shape. They take the shape of the container in which they are placed, right? Particles in liquids are not closely packed. बिल्कुल closely packed नहीं होते हैं as in solids, right? Liquids have they have the property to flow. They flow. Liquids की एक property है flow करने की, and liquids have specific properties: vapor pressure, viscosity and surface tension, जो हमें आगे करना है, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है? For understanding vapor pressure of a liquid, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इवोपरेशन। देखो बेटा, इवोपरेशन जो होती है, that is a continuous process and that takes always the continuous process and takes place at the surface of liquid, right? Surface of liquid में at the surface of liquid, that takes place at the surface of liquid, right? Change of water molecules from the surface of liquid into vapors is known as evaporation. ये कंटिन्यूअस होती है, ये लो टेम्परेचर में भी होती है, हाई टेम्परेचर में भी होती है। लो टेम्परेचर में कम इवापोरेशन होती है, हाई टेम्परेचर में इवापोरेशन ज्यादा होती है, राइट? अब मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, लेट अस टेक ए कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हम एक लिक्विड रखते हैं, कोई भी लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? अब इसमें इवापोरेशन होगी, molecules at the surface of liquid gets converted into vapors. Let it be water and we will get water vapors. Now let us collect these vapors. Let us place a bell jar over this container like this. Let us place a bell jar over it so that water vapors do not escape. Now these water vapors are collected here in this space because evaporation is taking place. ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बनेंगे, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, और जब यहाँ पर स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगी तो क्या होगा, सम वाटर जो मॉलिक्यूल्स है दे विल कम क्लोजर टू दिस लिक्विड एंड दे गेट कंडेंस्ड। पहले क्या होता था, इवोपरेशन होती थी ज्यादा क्योंकि कोई कंडेंसेशन नहीं थी, but with the passage of time when the space gets filled with water vapors, condensation of water vapors also takes place. Condensation means conversion of water vapors or vapors of liquid into liquid state. ठीक है, तो जितने जितने यहाँ पर वेपर्स बढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल आ जाता है। अगर 10 मॉलिक्यूल्स इवोपरेट होके वेपर्स में चले जाते हैं, at the same time 10 vapor molecules gets condensed into liquid, right? So at that stage what happens, जो वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे इस कंटेनर में जितने भी वेपर मॉलिक्यूल्स उस टाइम रहेंगे, दे विल बी कांस्टेंट, एंड जब ये कांस्टेंट रहेंगे, इनका जो कोलिजन होगा वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ वो भी कांस्टेंट होगा, राइट? वो भी बराबर होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, at the initial stage rate of evaporation is more while rate of condensation is less, but with the passage of time rate of evaporation will decrease, condensation will increase, and a stage is reached, एक स्टेज ऐसा आएगा when rate of evaporation
becomes equal to rate of condensation. When rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, right? Rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. This is also known as equilibrium state. Now, what is equilibrium? When two opposing processes occur at the same rate. इसको equilibrium state भी हम बोल सकते हैं. सो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वाटर वेपर्स यहाँ पर होंगे, लिक्विड के वेपर्स जो इस बेल जार में होंगे, दे विल बी कांस्टेंट नाउ. क्योंकि अगर यहाँ पर 1000 वेपर्स आ गए, अब 10 और आ रहे हैं, लेकिन 10 तो कंडेंस भी हो रहे हैं, because rate of evaporation rate of condensation is equal. So when rate of evaporation rate of condensation becomes equal, number of water molecules, number of liquid molecules in the container remains constant. So उनका जो प्रेशर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, और वी कैन से collisions per unit area होगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, that will be constant. We know pressure of a gas is due to collisions of gas molecules on the walls of container. So इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो collisions होंगे, क्योंकि since vapor molecules are constant in number, they do not change with the passage of time. So at this particular temperature, pressure will remain constant. पहले प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि वेपर्स बढ़ रहे थे, लेकिन अब इक्विलिब्रियम स्टेट में, या व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, अब क्या होगा? अब प्रेशर बराबर रहेगा, एंड दैट प्रेशर exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with the same liquid, or when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, is known as vapor pressure of a liquid. So दो definitions हम लिख सकते हैं vapor pressure of a liquid की. One definition is simple. Vapor pressure is defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. First definition. Second definition हम लिख सकते हैं simple. It is defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid when the vapors are in equilibrium with the same liquid. अब वेपर्स और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आ रहा है, बिकॉज ना तो वेपर्स चेंज हो रहे हैं ना तो लिक्विड चेंज हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम जो प्रेशर आएगा दैट्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, राइट? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? व्हाट आर द फैक्टर्स affecting VP of a liquid? What are the factors affecting VP, vapor pressure of a liquid? What are the factors affecting vapor pressure of a liquid? Number first factor is nature of liquid. Simple. कैसा लिक्विड है? अगर मैं दो लिक्विड रखूंगा एक ही कंडीशन में, एक ही टेम्परेचर में, तो उनके वेपर्स का लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, बिकॉज एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में ज्यादा जाएंगे, एक में कम जा सकते हैं, बिकॉज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफर करेगा. देखो बेटा, अगर वेपर प्रेशर is, we can say, varies inversely with magnitude of intermolecular force. अगर intermolecular force liquid molecules में ज्यादा है तो कम molecules vapor में जाएंगे, and at equilibrium there will be less vapor pressure, मतलब vapor pressure will be less. अगर कोई volatile liquid रखेंगे, अगर मैं same दो liquid ले रहा हूँ, suppose I am taking petrol and water, इन दोनों में मुझे प्रेशर देखना है, वेपर प्रेशर पेट्रोल का ज्यादा होगा बिकॉज वोलेटाइल, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन इज वीक, वैन डर वाल्स फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, व्हाइल इन वाटर इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा. सो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. Liquids having weakest intermolecular forces are more volatile and have more vapor pressure. राइट? सो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूं, आई कैन शो ग्राफ, बिकॉज वी नो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ता है. मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में ग्राफ डाल देते हैं.
वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ डालते हैं। देखो अगर मैं मान लीजिए मेरे पास ईथर्स है, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ऊपर आएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ ही जाता है, वो तो अभी मैं बताऊंगा। फिर एस्टोन ले लूंगा, सेम कंडीशन में फिर ले सकता हूँ अल्कोहल, फिर मैं ले सकता हूँ वाटर। सो अगर ये ईथर से डाइथल ईथर, सपोज ईथर सबसे वोलाटाइल होते हैं, डाइथल ईथर, इसलिए ये इनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। फिर एस्टोन, जो हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं, दैट इज एसीटोन, इसका भी वेपर प्रेशर हाई होता है बिकॉज इट्स आल्सो वोलाटाइल। फिर इथाइल अल्कोहल, ऑल द इथाइल अल्कोहल जो होता है, शराब होता है, विस्की होती है, इथाइल अल्कोहल, इट हैज it is also volatile, it has hydrogen bonding, लेकिन सबसे stronger hydrogen bonding होते हैं वाटर में। सो वाटर का जो है सबसे कम है वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर, अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लूं, उस पर कंपैरिजन करूं सबके, सपोज इस टेम्परेचर पर लिख लूं, इस पर हर एक चारों का बताना है मुझे कितना वेपर प्रेशर है। देखो वाटर का इतना आएगा, इथाइल अल्कोहल का इससे थोड़ा ज्यादा, स्टोन का इससे ज्यादा, और डाइथिल ईथर का इससे ज्यादा। ये इंडिकेट करेगा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेस इज द वेपर प्रेशर, राइट? दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर। Second, already explained in this graph, temperature. With the increase in temperature, kinetic energy of molecules increases. Therefore, more molecules change into vapors. So if I make a graph like this, temperature and vapor pressure of a particular, एक ही किसी भी लिक्विड के लिए ले रहा हूं, तो इट विल बी ऑब्वियसली लाइक दिस, ये तो बढ़ेगा, इट विल लाइक दिस, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, राइट? सो दिस इज टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बट याद रहे देयर इज अ कंफ्यूजन। थर्ड पॉइंट जो है, ये वैसे अलग पॉइंट भी नहीं है, तब भी मैं लिख रहा हूं, सरफेस एरिया। व्हेन इसे सरफेस एरिया बढ़ा दो, व्हाट हैपेंस टू वेपर प्रेशर? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सरफेस एरिया बढ़ा, वेपर ज्यादा आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ये क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया अगर हम लिक्विड का बढ़ाएंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। फिर क्यों है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, एक्चुअल में हम इवोपरेशन जरूर बढ़ेगी, ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन बढ़ेगी, लेकिन वेपर प्रेशर बराबर रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिकॉज व्हेन वी से वेपर प्रेशर, इट इज नॉट collisions of all molecules, it is not collision of all vapors, it is collision per unit area only, unit area. So अगर हम molecules बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटे से कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, यही मैं सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूं, इसी लिक्विड को मैं एक बड़े से ले रहा हूं, तो यहाँ पर तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए उसको कलेक्ट करके मेजर करना चाहूंगा, तो यहाँ का सरफेस एरिया उतना ही कम है, वेपर्स कम है, लेकिन सरफेस एरिया भी ऊपर से कोलिजन जो है, एरिया जो है जिस पर इसको कोलाइड करना, वो भी कम है। यहाँ का अगर मैं देखूं, यहाँ पर तो ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे मॉलिक्यूल्स, वेपर्स, लेकिन देखो कितने में कोलिजन करने हैं। सो पर यूनिट जो है, सपोज मैं यूनिट ले लूंगा दोनों में, इतने में, इतने में, इतने एरिया में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो यहाँ पर भी उतने ही होंगे, यहाँ पर भी उतने ही होंगे। सो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ बढ़े, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल जरूर बढ़े यहाँ पर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, लेकिन जो एरिया जिस पर कोलाइड करना है, कंटेनर का एरिया जिस पर हम प्रेशर देखने हैं, वो भी बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली। सो ये सेम रह रहा है, राइट? दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन, ये सॉरी वेपर प्रेशर। थैंक यू सो मच।